کہ تہنیتی تقریب منعقد کی گئی ہے. جس شخصیت کو تہنیت پیش کی جا رہی ہے وہ ملک ہندوستان کے لیے نہ محتاج تعریف ہے نہ محتاج تعارف ہے. آپ ایک عالمی علمی ادبی سیاسی شخصیت کے مالک ہیں. کئی ایک ملی دینی اداروں سے آپ وابستہ ہیں. حالیہ دنوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ایک اعلیٰ عہدہ تھا جس پر تقدس مآب شہزادہ بندہ نواب حضور ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب علیہ رحمت رضوان فائز تھے، اسی عہدہ جلیلہ پر حضرت علامہ مولانا خطیب العین عبید اللہ خان اعظمی صاحب کو فائز کیا گیا ہے. یقیناً ہمیں پوری قوی امید ہے کیونکہ آپ کی شخصیت نہ صرف دین کے حد تک محدود نہیں بلکہ سیاسی حالات پر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جب پارلیمنٹ میں جب آپ وہاں کے ممبر تھے اس وقت کے آج بھی یوٹیوب وغیرہ پہ آپ تقاریر سن سکتے ہیں. اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلانے والی شخصیت وہ حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی ہیں، کیونکہ وقت کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم تفصیلی طور پر آپ کے ان کارناموں کو بیان کیا جائے. بس یہی کچھ معروضات پہ آپ حضرات کی گوشہ گزار کر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ نہ صرف ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ کے بہت سارے خدمات جاری و ساری ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی حضرت علامہ خطیب الہند کی عمر میں درازی عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، انہیں تندرستی عطا فرمائے، مزید دین کا ان سے کام لیتا رہے. صاحب یہ زیر اہتمام آج کا یہ تہنیتی جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی شخصیت جیسا کہ ابھی کہا گیا محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن میں مولانا کا تعارف اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ مولانا کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرکاری تعطیل کا اعلان کرو. یہ بہت عظیم کارنامہ مولانا کا ہے، اور ایک خطیب جو ہے اپنی زور خطابت سے پارلیمنٹ تک پہنچ سکتا ہے، وہ شخصیت مولانا عبید اللہ خان صاحب کی ہے. اور آپ ایک بے باک خطیب اور بے باک مقرر ہی نہیں بلکہ کسی کو خاطر میں لائے بغیر حق گوئی سے آپ کام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کے پیچھے جو بڑا قافلہ چل پڑا ہے، ایک حق گو رہنما کی حیثیت سے آپ کے پیچھے ایک قافلہ چل پڑا ہے. اور مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ مولانا کے چاہنے والوں نے گلبرگہ میں ان کے نام سے ایک تنظیم محبان عبید اللہ خان اعظمی کو قائم کیا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ مولانا گلبرگہ آتے رہیں گے اور اس تنظیم کے تحت مختلف پروگرامز منعقد ہوتے رہیں گے. اور گلبرگہ میں ایک قیادت کی کمی کو، ایک قیادت کے خلا کو محسوس کیا جا رہا ہے.
तो मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के साथ रहे, उनके दरीना रिफाकत रही है, तो आपकी गुलबर्गा आमद से मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा में जो क़यादत का खिलाफ पाया जा रहा है वो इंशाअल्लाह दूर होगा। मैं अपनी जानिब से और आप तमाम की जानिब से मौलाना को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूँ। और मौलाना इब्तिदा से ही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जब से कायम हुआ है तब से आप बानी मेंबर हैं उसके, और पर्सनल बोर्ड में आपकी बहुत नुमाया खिदमत रही है। ये जो मुहिब्बाने उबैदुल्ला खान आज़मी साहब जो यहाँ पर आज तहनीती तकरीब के ज़रिए आप लोगों के सामने रूनुमा हुई है, उसको हम उम्मीद करते हैं कि जारी व सारी रखें और मुख्तलिफ मिली मसाइल पर और मुख्तलिफ दीन के मामलात पर हम लोग इजलास मुनक़िद कर सकें और मसाइल पर हक़ गोई और बेबाकी के साथ काम कर सकें। यही इस तहरीक को शुरू करने का या फिर ये जो तंजीम है उसको शुरू करने का मकसद है। मैं ज़्यादा मज़ीद इसके ऊपर बात ना करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इसमें ताउन रहेगा। अलीम इनामदार साहब जो मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब से मुसलसल मिली और समाजी फ़िक्र को लेकर गुफ्तगू करते आ रहे हैं, उसको अमली जामा इस तंजीम से पहनाया जाए, इसके लिए कामज़न रहेंगे और हम लोग भी उनका साथ देंगे। उबैदुल्ला खान साहब एक ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे देश में है उसका, और मैं आज ये समझता हूँ कि थ्रू हिम उनके बदौलत सभी को जस्टिस मिले और कानूनन जो भी वो कर सकते हैं इस देश के लिए वो ज़रूर करेंगे। और ऐसे इस मौके पर खुशी ये होती है कि गुलबर्गा में ये जलसा हमारे अलीम जी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ सभी को इसका फायदा मिले, इसका एक एहसास रहे कि ऐसे एक शख्स हमारे जो नज़दीक है उनको अल्लाह और भी अच्छा कुछ मौका उन पे लेके जाए, और आने वाले दिनों में लेट एवरीवन गेट गुड जस्टिस थ्रू कायदाना सलाहियत मजहबी तारीख से लेकर जितने मारके हुए तारीख इस्लामिया, तारीख हिंदुस्तान और दीगर मज़ाहिब की तवारीख, सबसे वाक़फियत रखने वाली शख्सियत, अमीर नजर रखने वाली शख्सियत, गहराई के साथ गहराई के साथ मसाइल को समझ कर उसके हल के लिए जिद्दोजहद करने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान है मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी की शक्ल में। यहाँ से इस तंजीम से अगर वाकईतन तंजीम चलाने में इखलास हो, क़ुव्वत और मोहब्बत हो, तो यहाँ से बेबाक कायद निकलेंगे जो मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। वह अबकरी शख्सियत, आलिम दीन भी है, हाफिज कुरान भी है, तारीख दान भी है, हिंदुस्तान के कानून को जानने वाली शख्सियत भी है। आज हम उनकी तहनीत कर रहे हैं, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और उन्होंने कभी किसी मसले को यकतरफा नहीं किया, गौर किया, सोचा, समझा, तकारीर के जरिया, तहरीरात के जरिया और अशार के बेहतरीन शायर भी है, बेहतरीन अदीब भी है। कलम उठाया और जवाब दिया, जैसा जवाब चाहिए बेबाकाना अंदाज में जवाब दिया। और वो शख्सियत जो खुद ये जब खिताब करते हैं तो अल्फाज अदब के साथ उबैदुल्ला खान आज़मी के सामने हाथ बांधे टहलते हैं और कहते हैं कि हमको कबूल फरमाइए, अपने लोगों का भूसा नसीब हो जाए। सिराज बाबा जुनैदी साहब से और निज़ाम बाबा से
اور تمام یہاں پہ ڈائس پہ تشریف فرما تمام مہمانان خصوصی اور آپ تمام لوگ جو یہاں پہ شامل حال ہیں، سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے. اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے عبید اللہ خان صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل حال رکھے، اور کیونکہ آپ کی کل روانگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کا سفر آج مجھ جیسے حقیر و فقیر کی عزت افزائی کے ذریعے 4 چاند لگائے میرے لیے اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا جتنی بڑی اہمیت مسلم پرسنلہ کے تحفظ کے لیے ایک خدمتگار کی حیثیت سے پہچاننے کا میں خواہش مند ہوں. آپ حضرات کی عزت افزائی کا بے پناہ شکریہ. چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے نائب صدر ہونے کی بنیاد پر یہ تہنیتی پروگرام ہمارے محبین نے منعقد کیا ہے، اس لیے 2 4 5 منٹ کی زحمت آپ گوارا کر لیں تاکہ میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کیا ہے اور اس کا تعلق ملک کے مسلمانوں سے اور ملک کی قومی یکجہتی سے گزشتہ تاریخ میں کیا رہا ہے. بات ہے 1972 کی. 1972 میں ہمارے ایڈوکیٹ مظہر صاحب تشریف فرما ہیں. 1972 میں اڑیسہ کی سرزمین پر جو ہمارے ملک کا ایک صوبہ ہے، وہاں کی حکومت کرتے ہیں، مگر ان بلوں کو بل میں منتقل کر دینا اللہ کے کرم سے ہمیں آتا ہے. گود لیا ہوا بچہ، جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کے خواہش مند ہوتے ہوئے کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں. وہ بچہ ان کی بیوی کو ماں اور انہیں اپنا باپ کہتا ہے. اس بچے کے حقوق کو سگے بیٹے کی طرح قانونی درجے میں رکھنے کے لیے یہ بل لایا گیا. اور وہیں سے مسلم پرسنلہ بورڈ کی ضرورت کا احساس ہمارے ملک کی تمام ملی جماعتوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے منسلک ہوں، اجتماعی طور پر پیدا ہوا. ہندوستان میں ملک کا دستور، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست 1947 کو، اور قانون ملا ہے اس ملک کو، دستور ملا ہے اس ملک کو 26 جنوری 1950 کو. اور اس کے بعد الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا. الیکشن کے ذریعے سلیکشن، اس کے بعد اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کا دستور سے وفاداری کا اعلان. دستور بنانے والوں نے اور سمویدھان کی رچنے والوں نے 3-4 سال تک محنت کی تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی بڑی قربانیوں کے بعد ملی تھی. ان کے لیے دی گئی تھی، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شامل تھے. ضرورت تھی کہ اس آزادی کو بچانے کے لیے ایک ایسا سمویدھان، ایک ایسا دستور دیا جائے، ایک ایسا قانون دیا جائے جو ملک کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کی سالمیت کو مستقبل میں برقرار رکھے اور مذاہب کا تصادم یا رسم و رواج کا تصادم اور ٹکراؤ نہ پیدا ہو. ہر مذہب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ہر طبقے کے رہن سہن اور مزاج کا خیال رکھتے ہوئے ملک کے دستور نے پوری دنیا میں جتنی بھی پارلیمنٹ ہیں آج کے دن
उनमें एक नुमाया और मुनफरिद मकाम भी हासिल किया। मुल्क के दस्तूर ने यह तय किया कि हिंदुस्तान का हर शहरी आजाद होगा, उसको अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल तौर पे आजादी होगी, अपने मजहब के प्रचार और प्रसार की आजादी होगी, अपने ख्यालात की आजादी होगी, अपने रहन सहन की आजादी होगी, अपने खान पान की आजादी होगी, और किसी को भी यह हक नहीं पहुंचेगा कि किसी के पर्सनल मामलात में वो इंटरफेयर करे। ये हमारे मुल्क का जो दस्तूर है उसका खास नुक्ता है। नतीजे में चलता रहा मामला, हमारा हिंदू भाई अपने ढंग से, मुसलमान अपने ढंग से, ईसाई अपने ढंग से, बौद्धिस्ट अपने ढंग से, जैनी अपने ढंग से, सब जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और सब के सब हिंदुस्तानी। ये जमीन का नाम या आसमान का नाम या पहाड़ों का नाम हिंदुस्तानी नहीं है, इसमें बसने वाले लोगों का नाम हिंदुस्तानी। सबके मजहब अलग, सबके रस्म अलग, मगर सबका एक मूल। कोई हिंदू कहलाता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। ये बंटवारा तो मजहब की बुनियाद पर लोगों का है और लोगों का ताल्लुक, मगर एक जहती के तौर पर जो नाम सामने आता है, इत्तेहाद के साथ जो नाम सामने आता है, सालिमियत के साथ जो नाम सामने आता है, उसका नाम है हिंदुस्तान, और उसी हिंदुस्तान में रहने वालों का नाम है हिंदुस्तानी। हम बाहर दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, हमारी पहचान और हमें परमिशन और हमें वीजा हिंदू, मुसलमान, ईसाई के नाम से नहीं मिलता, हमें वीजा इंडियन होने की बुनियाद पे मिलता है। मालूम यह हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी पहचान इंडियन की है, और हिंदुस्तानियों में बड़ा ही भाईचारा, बड़ी एक जहती गंगा जमुनी तहजीब की कदर पहले से मौजूद थी। इसलिए कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वालों ने जो हुकूमत किया था, उनकी हुकूमत की बुनियाद नफरत पर थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में इतनी नफरत पैदा कर दी थी कि उस नफरत के सहारे 150 साल तक इस मुल्क को वो गुलाम बनाने में कामयाब रहे। 150 साल तक इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान अंग्रेजों के जुल्म और इस्तिबदाद के कोड़े खाता रहा। जगह जगह हिंदू और मुसलमान मारे जाते रहे, और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बड़ा अजीबोगरीब खेल किया गया था। कुछ दलाल हिंदू थे और कुछ दलाल मुसलमान थे। ये दोनों गद्दार थे। हिंदू दलाल अपने धर्म का गद्दार था, मुस्लिम दलाल अपने धर्म का गद्दार था, और यही बिकाऊ माल थे, और इन्हीं के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करके अंग्रेज इतनी लंबी जिंदगी गुजार कर यहाँ से गया है। उस तरह के बेईमान हिंदुओं के हाथ से सूअर कटवा कर मस्जिदों में डलवा देना, और बेईमान मुसलमानों के हाथ से गाय कटवा कर मंदिरों में डलवा देना, ये एक ऐसा रास्ता उन लोगों ने अपना लिया था कि हम आपस में लड़ते रहें और वो सोने की चिड़िया को लूटते रहें। मुल्क आजाद हो गया। अब हमारा ये दस्तूर, इसी दस्तूर में एक चीज का ख्याल रखा गया। मुल्क के दस्तूर बनाने वालों ने इसका ख्याल रखा कि जहां तक ताज़ीरात हिंद का सवाल है, क्रिमिनल केसेस का सवाल है, वकील साहब कहीं गलती करूं तो मेरी सलाह कर दीजिएगा, सभी लोगों के लिए कानून एक होगा। और उस कानून के तहत ही फैसला होगा। चोर ने चोरी किया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, कानून सबके लिए एक है। किसी ने किसी को कत्ल किया, कानून सबके लिए एक। मगर वहीं क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, तो माइनॉरिटीज के लिए दस्तूर हिंद में मुसलमानों के इंटरनल मसाइल के लिए एक अलग से कानून बना। उस कानून का नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। 1937 में ये कानून बना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को भी इजाजत नहीं होगी इंटरफेयर करने का। मौजूद है, नाम ले रहा हूं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो अब मुसलमानों के किन मामलात में इंटरफेयर नहीं होगा?
वो है निकाह का कानून, तलाक का कानून, जायदाद का कानून, औकाफ का कानून, कब्रिस्तान का कानून, हेबा का कानून, वरासत का कानून। यानी मुसलमान जब लड़ जाएंगे आपस में, कहीं तलाक हो गया, कहीं आपस में जायदाद का झगड़ा हो गया जो वक्फ की जायदाद से मुतल्लिक है, तो इन तमाम तर चीजों की सुनवाई अदालत में होगी, मगर मुस्लिम पर्सनल के थ्रू होगी। इसलिए जितने भी वकील हैं हमारे, सबको तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मामला मालूम है, सबको शरीयत एक्ट 1937 की पूरी आगाही और जानकारी है, और जब भी केस हमारे वकील लड़ते हैं तो इसी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत लड़ते हैं। अब मुतबन्ना कानून आया, कानून लाने की कोशिश की गई, जिस तरह आज औकाफ में तरमीमी एक्ट के जरिए हमें डैमेज करने की कोशिश करने के लिए कानून लाया गया। कानून ये कह रहा था कि किसी को अगर आपने मुंह बोला बेटा बना लिया, गोद ले लिया, तो आपकी जायदाद का मालिक वो उसी तरह से होगा जिस तरह आपका अपना सगा बेटा आपकी जायदाद का मालिक होता है। जाहिर है ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकरा रहा था, इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में वही बेटा सही मानों में आपका बेटा है जो आपकी अपनी बीवी और आपके जरिए दुनिया में अमल में आया है। किसी के पास अगर औलाद नहीं है, किसी बेटे को किसी बच्चे को गोद में लेकर पाल देना ये एक अलग मामला है, मगर वो वारिस नहीं हो सकता। ये कुरान का फैसला है। गौर से सुन लीजिएगा, बड़े काम की बात। उस बच्चे का नाम था ज़ैद, उस बच्चे के बाप का नाम था हारिसा। मगर उस जमाने में लोग बच्चों को किडनैप कर लेते थे और ले जाकर बाजारों में बेच देते थे। वो भी एक सरदार घराने का बच्चा था, बाजारों में किडनैप किया गया, ला करके बेच दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब वो आया तो हुजूर ने गुलाम की हैसियत से उसको अपने पास नहीं रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान की आज़ादी को खत्म करने का हक किसी इंसान को, किसी कानून को नहीं है। मैं सबसे पहले इसका ऐलान करता हूँ, ये बच्चा जो मेरी गोद में आया है, मैं इसको सिर्फ मुंह बोला बेटा नहीं मानता, मैं इसको अपनी सगी औलाद की तरह कबूल करता हूँ, मैं इसको गुलाम नहीं मानता। मगर जब बाद में कुरान की आयत उतरी कि नहीं, आप परवरिश तो कर सकते हैं, मगर वो सगा बेटा खुदा की निगाह में आपका नहीं हो सकता। खुदा की निगाह में वही बेटा सही होगा आपका जो आपके सुल्ब से और आपकी बीवी के पेट से पैदा हुआ। हजरत, तो अब ये कानून जो आया ये सीधे मुसीबत अल्लाह से टकराया। जब ये टकराया तब इस मुल्क के उलमा के अंदर एक झुलझुली पैदा हुई। देवबंद भी जागा, बरेली भी जागा, शिया हजरात का लखनऊ भी जागा, जितने मसलक के लोग थे सब जाग गए और ये तय हुआ कि कोई एक बोर्ड बनाया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसके तहत अदालतों में जो झगड़े हो रहे हैं, जो हमारे मामलात जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी रहनुमाई करेगा। दो काम करेगा, एक तो कानूनी एतबार से आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, और दूसरे आपके अंदर जो खुद बुराइयां पैदा हो गई हैं, बेहयाइयां पैदा हो गई हैं, मुस्लिम समाज शराब पी रहा है, मुस्लिम समाज जुआ खेल रहा है, मुस्लिम समाज सूद खा रहा है, मुस्लिम समाज नमाज नहीं पढ़ रहा है, मुस्लिम समाज शरीयत पे कायदे से अमल नहीं कर रहा है, अक्सरियत मुसलमानों की इस तरह की बेहूदगी की राह पे जा रही है। इस बेहूदगी से मुसलमानों को बचाने के लिए और अच्छा इंसान, अच्छा हिंदुस्तानी और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ। तो आज उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक जिक्र किया, आपको शर्मिंदगी न उठानी पड़े, बल्कि मेरे जरिए अल्लाह वो काम ले ले जो काम आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए कारआमद हो।